Hello dear students, I welcome you to today's session. So as you all know, we have done the wind pressure belts and lot of things we have understood about the pressure belts of the world, and the common thing that has come out, which I have been discussing all through, that the air pressure is always from the high pressure towards the low pressure. High pressure area, the air moves from high pressure to the low pressure area, and on the earth, on the on our planet, ठीक है, अर्थ में this is there from the polar region, from north pole to south pole, and from eastern to western region. So this kind of wind pressure and the pressure belts that are there, that has helped us in understanding the changing environment and the changes in the atmosphere. Because of this pressure belts, the changes that occur, the changes that happen is very understood, is very remarkable. Got it? तो 2 दिन से हम वही कर रहे हैं. I have explained it 2 days in the videos. In case you have any problems, you can go through the videos once again, children, and I hope it would be clear. Now what we are going to talk about, children, अभी हम किस बारे में बातें करेंगे, and that is about the rainfall. बारिश होती है आजकल, कितनी हो रही है? So much of rainfall happening these days. How does this rainfall happen? Why does this rainfall happen? And then what are the effects of the rainfall? You all know it very well. Got it, children? So we'll try and understand the complete methodology, complete method of this rainfalls. Pehla dekho, children, I will start with this diagram. What is this diagram all about? This is about the cyclonic rainfall. Got it? साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन के साथ, आंधी तूफान के साथ जो बारिश होती है, ठीक है, दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल. यू नो इट वेरी वेल. तो ये जो आंधी तूफान होता है, द साइक्लोन दैट हैपन्स, एंड सो चिल्ड्रन, अभी ये डायग्राम हमने देखा. वी आर सीइंग दिस डायग्राम वेयर द कोल्ड एयर इज ऑलरेडी देयर. जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी ही ठंडक बढ़ती है. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, इन द सेम थिंग हैपन्स विद द वाटर वेपर्स. जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये जो नीचे में जितनी भी नदियां हैं, ओशन है, यू नो ऑन आवर अर्थ 80% ऑफ ओशन इज देयर. इतना पानी है. तो दिस वाटर बिकम्स वेपर व्हेन इट इज हीटेड. सन की हीट लगातार लग रही है, ये तो आपको पता है ना. ओशन इज देयर, sun is continuously heating this ocean, so the vapors that are there, it goes up, ऊपर जाके droplets बन जाते हैं, and then it comes down in the form of water, जिसको कि हम rain कहते हैं. Got it? The water that gets heated up, or the earth that gets heated up. आप ये देखो, यहाँ पे दिया हुआ है. This earth is here. The earth is getting heated up. This heat, when it rises, जब ये heat rise करता है, तो it is in the form of warm air. अभी हमने low pressure, high pressure में in the last class we have studied about it. Remember that when the sun is heating near the equator, सबसे ज़्यादा heat होती है as the sun's direct rays falls on the equator. यहाँ से the hot air rises, it goes up. And after going up, this hot air meets with the cold air up there. ऊपर में cold air है ना, already cold air is there. और ये जो warm air आता है जब ये ऊपर जाते हैं, it is formed in the form of बादल बन जाते हैं. Warm air goes from the land to the sky and it takes the shape of cloud. And from this cloud, the water droplets come down, and that is called as the rains. ठीक है, सबसे पहले तो ये आप देख लो, साइक्लोनिक रेनफॉल है. वार्म एयर यहाँ से ऊपर जा रहा है. द वार्म एयर फ्रॉम हियर इज गोइंग अप, यू कैन सी. एंड देन यहाँ पे हवा बह रही है, कोल्ड एयर इज हियर. गॉट इट?
एंड ये वार्म एयर एंड कोल्ड एयर इट मिक्सेस एंड बहुत तेज हवा चल रही होती है, then it comes down in the form of rain and it is called as the cyclonic rainfall. दूसरा वाला देखो बेटा डायग्राम, पहला है साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकेंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल और द रिलीफ रेनफॉल. इसमें क्या होता है, ये हिली रीजन में मेनली दिस रिलीफ रेनफॉल और द ओरोग्राफिक रेनफॉल हैपेंस इन द हिली रीजन. क्या होता है, that on the hills the air is going up, ठीक है. यहाँ पे already cloud is here and when this air goes up the cloud is here. ये warm air ऊपर आके जो ठंडी एयर है, ठंडा क्लाउड है, क्लाउड में जो ठंडा पानी है उससे टकराते हैं and then it rains on the hills. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स आ रही है. Got it? फिर से समझो इसको, try to understand it once again. That the moist air is going up. यहाँ पे जाके पहाड़ों पे तो ठंडक होती है, you know it very well. It is quite cold there. This air meets with the cold air up there. और यहाँ पे ये बादल फॉर्म हुआ है, यहाँ से ये बारिश हो रही है. It is raining. This is called as the relief rainfall. Then you have the convectional rainfall. Try to understand. सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया? The first one that we have discussed is the cyclonic rainfall. Okay children? उसमें the air is, I mean पूरा हवा के वजह से ये सारे phenomena हो रहा है, where the air is going up, it is forming the cloud and then it is coming out with coming down with air with very harsh air, बहुत तेज हवा के साथ it is coming down. तो that is called as the cyclonic rainfall. Next is the orographic or the relief rainfall. पहाड़ों से जैसे जब बादल टकराता है, बादल में ऑलरेडी पानी है बहुत सारा, the water droplets are already there in the clouds and when these clouds are hitting the hills तो बारिश होने लगती है. रिलीफ रेनफॉल, पहाड़ों की बारिश अच्छी भी होती है, लगातार होती है तो हमेशा बारिश तो अच्छा नहीं लगता है. तो व्हेन इट हिट्स द हिल्स, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर ये जब क्लाउड टकराया तो उससे टकरा के रेनफॉल जो हुआ दैट इज रिलीफ रेनफॉल. इसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल. ये देखो, वार्म एयर इज राइजिंग अप, सिंपल है, इट इज ऑन द सिंपल लैंड. वार्म एयर ऊपर जा रहे हैं, it is forming the cloud and then it is raining. So these were the types of rainfall: cyclonic, relief and convectional. Now children, we will be talking about one very important phenomena, that is moisture. ठीक है, moisture है ना, अभी एयर में बहुत सारा moisture होता है, नमी जिसको कहते हैं. ठीक है, नमी होती है ना बहुत, कपड़ा वपड़ा बाहर सुखाओ, इतनी मॉइस्चर होता है, कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है until and unless it is a dry weather. खूब तेज धूप निकली है और आसपास में पूरा it is the temperature is quite heated up और एयर में इतना मॉइस्चर नहीं होता है, बड़ी जल्दी कपड़ा सूख जाता है, isn't it? आप नहीं समझोगे, अपनी मम्मी से पूछो जो कपड़े धोते हैं. तो when the water evaporates, पानी evaporate हो रहा है from land and different water bodies, अलग अलग जगहों से the water is evaporating, it becomes water vapor. Water vapor जब ये बन रहा है, it is going upstairs, I mean on the sky, and moisture in the air at any time. जो नमी होती है ना एयर में, जो थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉपलेट्स, हमेशा आपको लगेगा कि एयर जो है थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको भीगा भीगा लगेगा. तो मॉइस्चर इज एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, देन इट इज़ अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट. इट इज़ नॉट ड्राई. ड्राई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, आपका बाहर आप जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी एंड यू विल फील लाइक इट्स वेरी हॉट, हमेशा पंखे के नीचे रहने का मन करेगा.
तो इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई वेदर। और ह्यूमिड वेदर में हमेशा आपको एयर में कुछ लगेगा, देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स। तो व्हेन एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, खूब सारा, जस्ट नाउ आई वाज सेइंग एयर है, एयर में लॉट ऑफ वाटर वेपर इज देयर, हमेशा आपको लगेगा कि जब व्हेन एवर यू आर मूविंग आउट यू फील कि आपको बहुत नमी लगेगी, पसीना बहुत आएगा। एक्चुअली वो पसीना है बिकॉज आपका पसीना सूखने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लाइक राइट नाउ ऑल्सो आई एम स्वेटिंग, वेदर आउटसाइड इज सो ह्यूमिड, ओके। सो इन ह्यूमिड वेदर व्हाट हैपेंस, वी स्वेट अ लॉट, बहुत ज्यादा पसीना आता है, एंड वी कॉल इट एज अ ह्यूमिड डे। नाउ व्हाट हैपेंस, द एयर गेट्स वार्मर, ये जो हवा है ना गर्म होती रहती है, एयर गेट्स वार्मर, एंड एयर इज होल्डिंग लॉट ऑफ वाटर वेपर। एयर में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन लॉट ऑफ वाटर वेपर इज देयर, heat all goes up and it forms the water droplets which is present in the air. तो जब water vapor is there in the air, जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है and it is increasing, just see as the air gets warmer its capacity to hold the water vapor increases. water vapor जो air ने hold किया हुआ है वो इंक्रीज करने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, एंड क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू डाई। अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट ड्राइंग द क्लोथ्स इन दिस एयर इज वेरी टफ। मैंने कहा ना आप नहीं समझोगे, आस्क योर मदर, कपड़े धो के बाहर सुखा रहे हैं, सूख ही नहीं रहे हैं, कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। गॉट इट चिल्ड्रन? So you can very well understand ये जो moisture है air में, it doesn't allow the clothes to dry, and clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. बहुत गर्मी होती है तो इतनी पसीना नहीं आता, पंखे के नीचे बैठोगे सूख जाएगा क्योंकि गर्म है ना। एयर में there is no moisture, water vapor droplets are not there in the air, तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल, जैसा अभी मुझे लग रहा है, अभी बहुत सारा पसीना हो गया है, हाँ, लॉट ऑफ स्वेटिंग इज देयर, स्वेट, पसीना, एंड इट इज़ वेरी स्टिंकिंग ऑल्सो, बहुत बेकार, यू नो, बिकॉज योर बॉडी गेट्स हीटेड एंड दैट हीट व्हेन इट कम्स आउट तो पसीना होता है, एंड इट स्टिंग्स अ लॉट। बारिश में आप देखो कपड़े भी बहुत महकते रहते हैं अक्सर, बिकॉज ऑल द टाइम यू कीप ऑन स्वेटिंग। नहा के निकलोगे तो भी आप स्वेट करते रहते हो, समझ में नहीं आता है कि नहाया वाला पानी है कि ये स्वेटिंग वाला पानी है। गॉट इट? तो मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज लॉट ऑफ मॉइस्चर इज देयर इन द एयर। तो वाटर वेपर राइजेस, वाटर वेपर जो है इट इज गोइंग अप। व्हेन द वाटर वेपर इज राइजिंग इट स्टार्ट्स कूलिंग, वेपर ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। Water is going in the form of vapor, going up, going up, going up. ठीक है? And formation of water vapor condenses, causing formation of droplets of water. ये जो vapor ऊपर जा रहा है ये जम जाता है, condense, it gets intact, comes together. And clouds are masses of such water droplets. ये बहुत सारे जो पानी की बूंदें हैं, which is present in the environment. जो एनवायरनमेंट में ये पानी की बूंदें हैं, जब ये साथ में जमा हो जाती हैं, when it gets all these water droplets come together, then these droplets become too heavy. and कभी कभी क्या होता है, ये जो droplets हैं ये बहुत heavy हो जाते हैं, it gets too heavy to float in the air. हवा में ये water droplets टिक नहीं पाते, and then they come down as precipitation. फिर ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं विच कम्स डाउन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। एक तो रेन हो गया एंड देन दूसरा इज द प्रेसिपिटेशन। गॉट इट चिल्ड्रन? तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जब मतलब कि एयर में एयर डजंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू होल्ड दिस वाटर, जो नीचे से भाप ऊपर जा रही है, अर्थ भी तो इतना गर्म हो जाता है, धुआं उठता है, तो दिखता नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स वी कुडंट सी इट because it is there in the form of air, and it is going up and then it comes down in the form of precipitation or rains. जेट प्लेन्स जो हैं, जो ऊपर फ्लाई करते हैं, आप कभी कभी देखोगे बहुत ध्यान से
व्हेन यू सी, बहुत ध्यान से आसमान में देखना, आपको दिखेगा एक वाइट कलर की एक लाइन दिखेगी, धुएं की लाइन, वो प्लेन्स का धुआं होता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। वाइट ट्रेल, पूंछ, सफेद रंग की धुएं की पूंछ होती है। कभी पता नहीं देखा है कि नहीं, ध्यान से देखना, कभी भी आप बाहर में खड़े हो, आजकल तो इतने प्लेन्स भी नहीं उड़ रहे। सो व्हेन नॉर्मल एनवायरनमेंट इज देयर एंड द प्लेन्स फ्लाई, तो मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, वही जो अंदर से जो इंजन से जो धुआं आ रहा है वो जम जाता है एयर में, तो वो हमको सफेद धुएं की पूरी लाइन नजर आती है। गॉट इट चिल्ड्रन? So you understood, children, precipitation. It is coming down to the earth and in the liquid form, because water droplets that are going up, okay, there are water droplets that are going up, and when these water droplets are coming out, coming down, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो गया, वाटर जो वेपर बन के ऊपर जा रहा था ऊपर जाके जम गया। जब ये जम गया एंड इट बिकम्स क्लाउड, बादल बन गया, देन इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। ये देखो, ये जो ड्रॉपलेट्स है, व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, मतलब एयर पे ज़्यादा देर तक ये टिक के नहीं रह सकता, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। ओके, तो नीचे आते आते इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ in a solid form, solidified form, and then when they come down, then it is in the form of rain, liquid form. So jet planes, when they are flying in the sky, jet planes, you can see when they fly in the sky, they leave a white trail behind them. एक सफ़ेद कलर का आप धुएं का एक लाइन देखोगे अक्सर, you will find. तो ये जो मॉइस्चर है, दिस मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस, इनकी इंजन से ये द मॉइस्चर दैट इज़ कमिंग आउट, इट इज़ गेटिंग सॉलिडिफाइड। और आई एम श्योर यू माइट हैव सीन, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, दैट दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर कंडेंसिंग and moisture from their engine condenses and we see trail of this condensed moisture. ये जो मॉइस्चर है, देयर इज व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तो अभी हवा आती है, तो हवा के साथ तो ये क्या होता है, दैट द एरोप्लेन दैट इज फ्लाइंग, उसके साथ ये धुएं के साथ द ट्रेल दैट इज देयर, इट वैनिशेस, गायब हो जाता है। ये जो धुएं की लकीर है ना, ये गायब हो जाती है। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, that this condensed moisture from some time when there is no air movement to disturb it, हवा बहुत तेज़ नहीं चल रही है, तो it leaves a line of white smoke trail we find. So precipitation which is coming down to the earth, earth में these solidified droplets of water that is contained in the air, that is contained in the environment, comes down in the form of rain on the earth, in the liquid form is called as rain. Most of the ground water, जितना भी हम पानी पी रहे हैं, all this ground water is coming from the rain water. जो हवा चलती है, जो रेन होती है, इसमें से we are getting most of the water, drinking water. फ्रेश वाटर वी डोंट हैव, हमारे पास फ्रेश वाटर तो नहीं है। वी आर ऑल सराउंडेड बाय सी, ओशन। कभी देखा है पानी कितना खारा होता है, सारा नमक का पानी होता है, वो पी सकते हैं? नो। काश हम वो पी सकते। अगर इफ इट वुड हैव बीन फ्रेश वाटर, हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाती, आवर लाइव्स वुड हैव बीन सो सिंपल एंड सो ईजी। तो प्लांट्स क्या होता है, इट हेल्प अस प्रिजर्व वाटर। बहुत सारा पानी हम जमा करके, वो प्लांट्स क्या करते हैं कि द ड्रिंकिंग वाटर दैट वी आर टेकिंग, द इनटेक ऑफ दिस ड्रिंकिंग वाटर, इट इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स। हम क्यों इतना कहते हैं, वाई डू वी से दैट वी मस्ट प्लांट द ट्रीज? बिकॉज द ट्रीज, ये जो ट्रीज की जो जड़ होती है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट आर देयर, दैट होल्ड दिस वाटर।
इन सारे वाटर को जमा करके ये प्लांट्स अपने अंदर में रखते हैं एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली इट इज़ गिविंग इट टू द ग्राउंड वाटर। और जब ज़मीन खोदते हैं तब कुएँ से पानी पीते हैं। कुआँ कहाँ, ज़मीन खोद के कुआँ बनता है। तो ऑल द ड्रिंकिंग वाटर दैट वी आर गेटिंग इज फ्रॉम इनसाइड द अर्थ विच कम्स फ्रॉम द रेन दैट इज फॉलिंग फ्रॉम अप। और ओशन कितना, 80% ओशन इज देयर। तो कितना सारा बादल बनता है और इतनी सारी बारिश होती है। दिस इज दैट वाटर दैट वी ड्रिंक। ये वही पानी है जो हम लोग पीते हैं, ओशन वाला नहीं, वेपर बन के जो ऊपर गया है। दैट इज द वाटर, द स्वीटनेस ऑफ दैट वाटर, वेपर वाला जो वाटर है, दैट वी ड्रिंक। प्लांट्स, इट इज हेल्पिंग अस प्रिजर्व द वाटर एंड ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। जब ये ट्रीज काट देते हैं हम तो रेन वाटर फ्लोज डाउन, तेजी से ये पानी नीचे आता है। एंड माउंटेन्स आर देयर, इट कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। ये जो पहाड़ों में जितनी भी नदियां हैं उसमें काफ़ी सारा पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेन्स। व्हेन कंटिन्यूस रेनफॉल इज देयर सो वाटर इंक्रीजेस इन ऑल दीज रिवर्स। रेन वाटर फ्लोज डाउन ऑन द बेयर माउंटेन्स, पहाड़ों पे बारिश होती है। एंड फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज, नीचे में जितने भी एरिया है वहाँ पे बहुत सारी बारिश होने लगती है। एंड बाढ़ भी आ जाता है ना, क्योंकि नदियों में इतना पानी भर जाता है। कंटिन्यूस रेन्स आर हैपनिंग, सो लॉट ऑफ वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन दीज रिवर्स एंड इट कॉजेज फ्लड्स एट टाइम्स। तो ऑल दिस मैकेनिज्म दैट इज देयर, ये जो सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल, द ओरोग्राफिक एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, we have discussed it. I am again showing it to you children. This is the convectional rainfall. Warm air is going up and then clouds banke it is coming down in the form of rain. Then moist air or moist air is going on the hill. ठंडा उसके बाद when this warm air is going up, उसके बाद ठंडक बनके it becomes cloud and from there the rain occurs and it falls down. Then we have the cyclonic rainfall. Warm air is going up and then it is mixing with the cold air. ये गर्म हवा में ठंडी हवा मिल गई and then it comes in the form of rainfall which is called as the cyclonic rainfall. तो ये मॉइस्चर का पूरा कॉन्सेप्ट था। रेनफॉल कैसे होती हैं चिल्ड्रन, वी हैव ऑलरेडी read about it. Then rainfall is very important. All the plants and animals that are there, for their survival, this rainfall is important because these plants and animals, their lives depend on this rainfall. अगर ये बारिश, सोचो अगर बारिश नहीं हो, if the rainfalls are not happening, what will happen? Everywhere it would be dry, हर जगह सूखा पड़ जाएगा. We will be having lack of drinking water. पीने के लिए पानी नहीं होगा. Okay? And not only for us, all the plants that are there, plants are also dependent on this rainwater. So it brings fresh water to the earth's surface and rainfall is less, water scarcity will happen, सूखा पड़ जाएगा, drought will occur, सूखा पड़ेगा. On the other hand, पानी देखो, कम बारिश होती है तो प्रॉब्लम है, ज़्यादा बारिश होने लगेगी तो भी प्रॉब्लम है. क्या होता है? फ्लड्स टेक प्लेस. ओके, ये जो बाढ़ आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव रेनफॉल. तो कम भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है. देयर शुड बी बैलेंस इन एवरीथिंग. ये सारा जो है बहुत बैलेंस्ड मैनर में होना चाहिए. गॉट इट चिल्ड्रन? सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट टॉपिक वाइज. ठीक है चिल्ड्रन, सो वी हैव रेड अबाउट दिस चैप्टर. वी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमोसफेयर. All the blanket of air that is there is called as atmosphere. And composition of the atmosphere, we have oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon. ये diagram I know many of you have made it. The air that is there, it contains many gases. कौन कौन सी gases हैं ये हमने पढ़ा था. We read about these gases here.
what percentage of gas, which gas is in what percent, that also we have done. Okay, and सबसे पहले तो nitrogen is in abundance, and then the one gas that is in abundance is oxygen. Second most plentiful gas in the air. Human and animals all take oxygen from the air as the breathing. And green plants, they are producing oxygen during photosynthesis. Photosynthesis होता है, so what do? They intake the carbon dioxide and they exhale oxygen. तो ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट. ऑक्सीजन अगर ज़्यादा से ज़्यादा एयर में चाहिए तो वी मस्ट प्लांट ट्रीज. कार्बन डाइऑक्साइड अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे गेट द फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड क्या होता है, समटाइम्स देयर इज लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर. बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर. तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड एंड अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट इज अफेक्टेड. Then we understood about the structure of atmosphere. We have already done it in detail, children. Structure of atmosphere, सबसे नीचे में we have the troposphere. Okay, most important layer, and 13 kilometer तक we have troposphere. And then we have the next one which exists in the atmosphere. The next that exists is stratosphere, 50 kilometers तक. And aeroplanes fly in stratosphere. ये देखो, it is mentioned here. Got it? Then we have after the stratosphere, 50 kilometers तक we have stratosphere. Then we have the mesosphere. You can see it is mentioned here. Got it? The third layer of the atmosphere, it is between the, it lies above the stratosphere up to 80 kilometers. And then we have the thermosphere. Temperature is very high in this region, in thermosphere. And with the increasing height, what happens that the temperature keeps on increasing. So ionosphere is a part of this layer. इस layer में क्या मिलता है हमको? We find ionosphere. देन वी हैव द सबसे ऊपर वाला लेयर, जिसके बाद कि हम अर्थ के एरिया से बाहर निकल जाते हैं, वी गो इनटू द स्पेस एंड दैट इज एक्सोस्फेयर. अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोपॉज होता है, देन थर्मोस्फेयर एंड देन द अपर मोस्ट लेयर इज द एक्सोस्फेयर. इसके बाद स्पेस शुरू हो जाता है. यहाँ से व्हेन वी मूव आउट ना, देन वी गेट इनटू स्पेस, वी एंटर इनटू स्पेस. ओके, इसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस हमने समझा. वेदर ऑन अ डे टू डे बेसिस, रोज़ जो मौसम बदलता है, जब हम कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी है, ये जो ठंडी एंड गर्मी वाला वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ वेदर ऑन अ डेली बेसिस, इट इज़ चेंजिंग. एंड देन द अदर वन इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट में क्या होता है, दैट द चेंजेस in the atmosphere, in the nearby areas, all through the year, सारे साल में जो changes होते हैं, the changes that occur the whole year, that is called as the climate. So weather and climate. Then we have the temperature. Temperature we feel every day. It is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness, coldness is known as the temperature. And temperature of atmosphere changes between day and night. दिन और रात में जो temperature change हो रहा है, that is the temperature, that is the weather. And then the climate. Summers are hotter than winters. Summer, winter का जो concept है, that is the climatic concept. Temperature में one very important factor क्या है? Insolation. सोलर एनर्जी, जो सन के रेज अंदर आ रही हैं इन आवर अर्थ साइड, द टेम्परेचर दैट इज कमिंग, द हीट दैट इज कमिंग, इट इज ट्रैप्ड बाय द अर्थ, इट इज कैप्चर्ड बाय द अर्थ, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. दिस इज कॉल्ड एज इंसोलेशन. देखना बेटा आप लोगों को. आफ्टर दैट टेम्परेचर
एट द पोल्स आर वेरी हाई, वेरी लो, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बर्फ जमी होती है. वाई? बिकॉज द सन डायरेक्ट रेज डजंट रीच देयर, एंड सन्स डायरेक्ट रेज आर रीचिंग ओनली टू द इक्वेटर पार्ट. तो एक्सट्रीम वी फाइंड ऑन दिस अर्थ, वी हैव गॉट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एज वेल एज एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट. तो दोनों तरीके के क्लाइमेट हमको जो है एक ही जगह पे मिलते हैं. ऑन वी आर वेरी लकी टू स्टे ऑन दिस अर्थ वेयर वी आर विटनेसिंग ऑल दिस काइंड ऑफ अ क्लाइमेट एट वन प्लेस. इसके बाद तो बेटा ये हम लोगों ने पढ़ाई है, यू ऑल हैव सीन this diagram. Okay, some of the measuring instruments that are there: air pressure, the easterlies, the westerlies, northeast trade winds, southeast trade winds, prevailing westerlies. ये सारा हम लोगों ने किया है children. We have all done it. I have explained it to you. And the polar high pressure, polar low pressure, this we have discussed. ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, you will understand. Then cyclone and then the rains. So we have completed this chapter successfully, children. Tomorrow, in the tomorrow's video, we will be discussing the question answers which you can solve, and then you can send it on my mail. Thank you so much, children. All the best to you.